بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تہا انفو ٹی وی۔ دوستو، بحر اکینیس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ایک تکون کی صورت میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی سمندری حصہ ہے، کیونکہ یہاں کچھ ایسے پراسرار اور عجیب و غریب واقعات جنم لے چکے ہیں جن کا معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا بھر کے سائنسدان اسے اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی واضح دلائل آج تک نہیں دے پایا جس سے یہ سمجھا جا سکے آخر کے اس سمندری حصے کی گہرائیوں میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے کئی سمندری جہاز، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والے جہاز تک لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کا آج تک ان کا کوئی سراغ تک نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل سے 100 کلومیٹر ارد گرد کے جزیروں پر ایک اور سمندری حصہ جو کہ اسی طرز پر پراسرار اور ناقابل فہم سرگرمیوں کا مالک ہے، اور اسے ڈیول سی یا سمندری شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسے برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیول سی کی حقیقت آخر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان کا مذہبی اور سائنسی دونوں بنیادوں پر جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کی طرف۔ یہ علاقہ مغرب کے جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لوورڈ اور پھر شمال سے برمودا تک 300 جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ اس کی آبادی 6500 افراد پر مشتمل ہے اور زیادہ تر جزیرے یہاں پر غیر آباد ہیں، یعنی 65 میں سے صرف 20 جزیروں میں انسان بستے ہیں۔ پچھلے 400 سالوں سے انسانوں نے کوشش کی کہ وہ وہاں جا کے آباد ہوں، مگر چونکہ ماضی میں یہاں ناقابل یقین واقعات جنم لے چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے علاوہ تمام سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود تمام بحری جہاز اس علاقے سے دور رہ کر ہی سفر کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز میں موجود مسافروں کو جہاز کا عملہ بتاتا ہی نہیں کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوائی جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے بخیر و عافیت گزر جاتے ہیں۔ اور دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے پہلے لکھی گئی دستاویزات 11 اکتوبر 1952 کو کرسٹوفر کولمبس کی لکھی گئی کتاب میں ملتی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک سمندری سفر کے دوران ایک مخصوص سمندری حصے پر اوپر نیچے ہوتے ہوئی روشنی دیکھی اور سمندر میں آگ کے لپٹے بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ ان کا کمپاس بھی ٹھیک سے سمت نہیں بتا رہا تھا، یعنی کہ کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مطلب یہاں پر کچھ عجیب طرح کی میگنیٹو وائلز موجود تھیں اور بہت ہی غیر معمولی حرکات اس سمندری حصے میں دیکھی گئیں، جبکہ برمودا ٹرائی اینگل سے جڑے حادثات کا پہلا واقعہ 18ویں صدی میں پیش آیا، جب سن 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون برٹ کی بیٹی ایڈوسیا اس برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں غائب ہو گئی۔ جب وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ میں سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی، اس کشتی کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد US پریزیڈنٹ نے تمام وسائل استعمال کیے کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکے، مگر اس کا کوئی سراغ کبھی نہ مل سکا۔ دوستو، اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی کہ سن 1814 میں امریکی جنگی بحری جہاز بھی برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس جہاز کا کپتان بھی بہت مشہور اور ماہر جانا جاتا تھا، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے کئی جہازوں کے غائب ہونے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب ایک جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے پانیوں پر اس طرح سے تیرتا ہوا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب تھے، اور کھانے کے میز پہ کھانا ابھی تک اس طرح سے موجود تھا کہ جیسے سب لوگ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر کہیں چلے گئے ہوں، اور کسی حادثے کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ اس طرح کا مزید ایک واقعہ پیش آیا جب SS ٹیل نامی سمندری جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے پاس بغیر مسافر اور عملے کے تیرتا ہوا ملا۔
बज़ाहिर तो ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका इस वक्त लगा जब पता चला कि एक अरसे तक इस जहाज़ को रिकॉर्ड के अंदर गर्क दिखाया जाता रहा है, मगर अब तक सालों गुजरने के बावजूद ये जहाज़ सही सलामत तैर रहा था, और वो भी किसी मुसाफिर और अमले के बगैर, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहुत पहले डूब गया था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डूबा हुआ जहाज़ समुद्र पर तैरता हुआ कैसे वापस आया। दोस्तों, सन 1850 से लेकर अब तक बरमूडा ट्रायंगल में तकरीबन 50 बड़ी जहाज़ गायब हो चुके हैं, मगर इसके बाद 1945 में यहाँ से फ़ज़ाई तैयारे भी गायब होना शुरू हो गए। ये वाक़या तब पेश आया जब फ्लोरिडा से 10 तैयारे तरबियती परवाज़ के लिए रवाना हुए, जबकि वापसी पर 2 तैयारे गायब हो गए। इसी तरह मज़ीद 5 तैयारे फिर इसी साल गायब हो गए, और इन तैयारों को ढूंढने के लिए जो फ़िज़ाई तैयारे भेजे गए वो भी कहीं गायब हो गए और कभी उसका नामो निशान तक ना मिला। दोस्तों, अमेरिकी बहरिया के नक्शे में बरमूडा ट्रायंगल का कोई लफ्ज़ मौजूद ही नहीं, और कई साइंसदान भी बरमूडा ट्रायंगल के गैर मामूली सरगर्मियों का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम जहाज़ों के डूबने की वजह वही है जो आम तौर पर दूसरे समुद्रों में हुआ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई साइंसदान इसकी वजह गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी को कहते हैं, जिसकी बदौलत कुतुबनुमा या कंपास काम करना छोड़ देते हैं और यूं हादसात जन्म लेते हैं। एक और नज़रिए के मुताबिक इस इलाके में जन्म लेने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देते हैं, अपनी तरफ खींच कर डुबा देती हैं, और इन्हीं समुद्री झटकों के बदौलत फ़ज़ाई पायलट जहाज़ों का कंट्रोल खो देते हैं और समुद्र में जा गिरते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक और समुद्री पुरअसरार हिस्से डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ। तारीख में मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान का जिक्र भी मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए आते हुए इसकी जहाज़ पानियों में डूबकर कहीं गर्क हो गए। और हैरत की बात तो यह है, इन जहाज़ों पर 40,000 फौज मौजूद थी, इसका भी कभी कोई सुराग ना मिल सका। और ये वही डेविल सी का इलाका था जो कि बहरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियामी एक जजीरे के पास वाक़ है, जबकि इस इलाके की पुरअसरारियत को रद्द करते हुए कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा जहाज़ गर्क नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियाँ मैग्नेटिक वेव्स या मकनातीसी लहरों की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर दोस्तों, ये बहस सदियों से चलती आ रही है और कोई भी साइंसदान कभी भी एक नुक्ते पर एग्री नहीं हुए। बहरे ओकेनियस के बरमूडा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के डेविल्स ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ मौजूद है, जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा तैरते हुए मिलना, इसकी भी कोई वजाहत किसी के पास मौजूद नहीं। और तमाम साइंसदान हर तरह की टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद इन दोनों समुद्री हिस्सों के राज को जानने से कासिर हैं। लिहाजा अब इन समुद्री राजों को हम इस्लामी नुक्ते नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम कुरान और हदीस में इसके मुतल्लिक कोई हवाला तलाश करें तो हमें सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रिवायत करदा हदीस को मुद्दे नज़र रखना होगा। हज़रत अमीन दारी पहले ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, मगर बाद में उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत अहम वाक़या था, जो कि यकीनन इस शैतानी समुद्री हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। इस रिवायत के मुताबिक एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे एक ऐसा वाक़या बयान किया है कि जो मैं तुम्हें दज्जाल के मुतल्लिक बयान किया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि लखम और जज़म कबाइल के 30 आदमियों के हमरा समुद्र के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुए, मगर इनका जहाज़ समुद्र की लहरों का शिकार होकर महीनों भर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए और इस वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरा में दाखिल हुए तो वहाँ इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे। बालों की कसरत से इसका जिसामत भी देखना मुश्किल था। तमीम दारी ने इस जानवर से कहा, तेरा सत्यानाश हो, आखिर तू क्या चीज़ है?
तो इस जानवर ने जवाब दिया, मैं हसासा हूँ। तमीमदारी ने फिर पूछा, हसासा क्या चीज़ है? इस जानवर ने फिर जवाब दिया, ऐ लोगो, खानका में मौजूद इस आदमी के तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तमीमदारी को खौफ हुआ कि ये जानवर पर कहीं शैतान ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा वो तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसको घुटनों से लेकर टखनों तक बांधा गया था और वो एक लोहे की जंजीर में कैद था जिसके जरिए इसके हाथों को गर्दन के साथ बांधा गया था। तमीमदारी ने उससे सवाल किया, तू क्या चीज़ है? इस आदमी ने कहा, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। हज़रत तमीमदारी ने जवाब दिया, हम अरब से हैं, और अपने तमाम सफ़र की दास्तान सुनाई। इस शख्स ने कहा, मुझे बेसान की नखलस्तान के बारे में बताओ। तमीमदारी ने जवाब दिया कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। इस शख्स ने कहा कि क्या इस बाग के दरख्त पर फल आते हैं? तमीमदारी ने जवाब दिया, हाँ आते हैं। फिर इस शख्स ने कहा, मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ कि क्या इसमें पानी मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है। फिर इस शख्स ने कहा, क्या लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं? और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताओ। हज़रत तमीमदारी ने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। फिर इस शख्स ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के साथ जंग की और वहाँ इनके साथ क्या क्या किया? तमीमदारी ने उस शख्स को तमाम अहवाल बताया और बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतज़िर है, और वो एक गैर आबाद दुनिया में लोगों की पहुंच से दूर अलग थलग एक जजीरे में कैद है, और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है और इसके कारिंदे इसको लम्हा बा लम्हा दुनिया के हालात से आगाह करते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनने के बाद अपना अस्सा 3 दफ़ा ज़मीन पर मारकर कहा, यह है तैबा, यह है तैबा, यह है तैबा। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन में, बल्कि मशरिक में है। दोस्तों, जजीरा अरब से मशरिक के जानिब देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐसी जगह है जिन्हें मगरिब में रहने वाले लोग भी शैतानी समुंदर या डेवल सी कहते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर इन दोनों शैतानी समुंदरों को आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। लिहाजा हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरिक में है, और कई उलमा कराम इस हदीस मुबारका की रोशनी के बाद ये ख्याल करते हैं कि वो समुद्री इलाका जिसमें दज्जाल को कैद किया गया है वो या तो बरमुदा ट्रायंगल है या डेवल सी। हो सकता है कि इसके अलावा दोस्तों एक और मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ने अपनी किताब मुसल्लस बरमुदा में लिखी है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल कहल के इन बेआबाद जजीरों में कैद था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर इनके विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं, मगर ताहाल इसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समुंदर से शैतानी तिकोन तक है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर उरूज व कमाल तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो बरमुदा ट्रायंगल के किनारों पर सिर्फ अमेरिकन तहजीब मौजूद है, और यही तहजीब परवान चढ़कर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुबारक हदीस में फरमाया कि अगर दज्जाल का ज़हूर मेरी अदम मौजूदगी में हो तो तुम में से जो भी शख्स उसका सामना करे तो वह इस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयात की तिलावत करे, ताकि अल्लाह तुम लोगों को इसके फितने से बचा ले। दज्जाल के लश्कर में 70,000 लोग शामिल होंगे, जो कि गैर मामूली ताकत के साथ हज़रत ईसा और इमाम महदी की तरफ बढ़ेंगे। यह हक़ व बातल का आखिरी मार्का होगा। यहूदियों का अकीदा है कि जब वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे
तब दज्जाल का ज़हूर होगा और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि साइंस और मजहबी हवालों से आप पर इन दोनों समुद्री हिस्सों की पुरअसरारियत का राज काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।